सब जित राजी मैं किश नहीं
कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। मैं नहीं प्रभु तब किश तेरा, ईगै निर्गुण उगै टरगुण, गेल करत विच स्वामी मेरा। सतगुरु औंदन पर उपकारी, जीवन में उधार वास्ते।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा। गुरु की संग सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੀ। ਦਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਦੇ ਸਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗਰਮੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਅਨਾਥ को पाले, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ को गाले। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ, ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹੋ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਫਰਨਾਮੇ ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਸਵਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਰ ਫੁੱਲ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,
तेरे पत्थर दिल हिरदे ने मैनू तलवार चक्कन लई मजबूर किया। मजबूर सिखा दे विच ते बड़ा प्यार हुंदा कहो है। पर अज जद वेखदे आ सिख नूं सिख ही पते भला के राजी नहीं है। पर जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागा। हाँ जी पाए जी, पाए जी। सिख नूं सिख दे हो जाने दर्शन ते सिख नूं जे चाह न चढ़े ते तरकार है जो सिख नूं खालसा जी कहो है। सिख नूं सिख दे दर्शन हो जाने ते सिख नूं चाह चढ़ जे। चाह सच्चे पातशाह तेरा रूप है सारा ही। माफ करना गुरु की संगत खालसा दो धारा खंड है। एक पासे एक गरीबां दी रखिया करदा ते दूजे पासे जालमां दा नाश करदा। ते ये साथ विचार के वेखिए किथे चक्की तलवार। माफ करना महाराज कहंदे जिथे कोई मसला गल ते विचार नाल हल ना हुंदा होवे उत्थे अपने हक्कां दे वास्ते तलवार चकनी कोई गुनाह नहीं है। महाराज दे चरणन सिक्का बेनती कीती पातशाह आप जी कृपा करके दसो भी आप जी दे आउण दा प्रयोजन की है। हजूर लगे कहण सिखो पहला आप जी ये दस दे मैं क्यों आया। आप लो जी कहने खालसा जी आग्या पई अकाल की तवी चलायो। हुण सारे कही जाने आपां पंथ नूं खतरा, पंथ नूं खतरा। पंथ नूं कदे भी खतरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसी कुर्सी वाले नूं खतरा खतरा हो सकता, किसी कुर्सी वाले नूं खतरा हो सकता है। पर जिस पंथ नूं साजण समय सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जिस पंथ दीआं नीहां दे विच जिस पंथ दा महल बनाउण समय जिस पंथ दीआं नीहां विच अपने चार पुत्रां दा खून पाया, जिस पंथ दीआं कंधां ਸਿੰਘਾਂ शहीदां दे सिरां नाल बणीਆਂ होण, जिस पंथ दे पिलर साध संगत जी माफ करना पंजां प्यार पिलर बनाउण लगे पंजां प्यारिਆਂ दे सिर लगे होण, जिस पंथ दा पंथ दे महल दा छत पाउण लगे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज दे पवित्र सीस लगे होण, वो पंथ दी कदी ढैंदी कला हो सकदी साध संगत। पर पंथ दे साजण वाला कहंदा, साजण वाला की कहंदा पंथ चला तब जगत में जब तुम होत। जरा ध्यान देना पवेगा। गुरु साहब लगे कहण सिखो इस तरह बड़ा समा दुष्टां नूं सोधने करके साडा नाम पै गया दुष्ट दमन। एक साडी जिंदगी च ऐसा समा आया साडे मन च वैराग पैदा होया कि सारा समा सारा जीवन ही दुष्टां नूं सोधन दे विच लग गया। कुछ एकांत जगह ते किसी एकांत जगह ते बैठ के ना कुछ समय एक मन एक चित होकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। फिर गुरु साहब लगे कहन सिखो सानू एकांत जगह केड़ी पसंद आई, केड़ी जगह जिथे कोई मथे ना लगे खोवे ओ जगह केड़ी सी। सिखो तुसी नाम सुनिया होना हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है। तहां साध संगत जी ओ हेमकुंड पर्वत जिदियां सत चोटियां ना आकाश नूं छूंदियां ने। माफ करना उस हेमकुंड पर्वत ते बैठ के ना तै हम अनक तपस्या साधी। बड़ी तपस्या की, इन्नी तपस्या की, कोई सालां दी गल नहीं की, कोई सदियां दी गल नहीं की, जुगां दी गल की, जुगां दी गल बदे बदे। माफ करना तै हम अनक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी ओ वाहरु परमेश्वर। काल भी जिदे अधीन है, मौत भी जिदे अधीन है। बहुत समा उस वाहरु परमेश्वर का ध्यान धर के ना गुरु साहब सिखां नूं कह रहे ने साडे आउण दा कारण असीं किवें आए। माफ करना गुरु की संगत ते आड़े आउण दा कारण की हजूर ऐ कह रहे ने अनक तपस्या साधी ता हम अनक तपस्या साधी। तपस्या साधी तपस्या साधी तपस्या साधी।
ਸਿੰਘੋ ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਸੇਓ ਤੂੰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੋ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, अब तो चाहे चढ़े तीन काटन मिला सावन पानी रात भी आए उड़ सके बिचारी। कबीर जी ने मलाप की अवस्था ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। माफ करना दसदे ने सके पहचानी जी कोई न सके पहचानी जी कोई न सके पहचानी जी कोई न सके पहचानी जी। कोई न सके पहचानी जी सके पहचानी कोई न सके पहचानी जी।
ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो। अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो, अपनी कथा बखानो। अपनी कहानी, अपनी जबानी, अपने आने का प्रयोजन दस रहे ने। खालसा जी आज्ञा गुरु प्यारे कैसा समा आया। इधर मातलोक दे विच सच्चिदानंद कूड़ बस्तियां वक्त बेसार बीजो बीज पत लैके होए अर्जुन सिखो। इधर मातलोक दे विच राजे ने कसाईयां दे रूप धारण करदा होए सन। नित रोज गरीब रब दी दुकाई ते रब दी प्रजा ते नित रोज नवे तो नवे जुर्म ढाए जा रहे सन। सिखो साडे आउण दा कारण जिसको अति हेमकुंड दियां हेमकुंड पर्वत दियां चोटियां ते अपने मालक दे नाल एक विक हो के मालक दा ध्यान धर के अभेद अवस्था प्राप्त करके चौंकड़ा मार के बैठे होए सब प्रेमियों। इधर जालमां दे दुखाए गरीब दुखी जनता एदियां नित रोज दियां अरदासां ने, गरीब प्रजा दियां नित रोज दियां अरदासां ने। अंतरजामी वहरू परमेश्वर दे लोक विच खालसा जी गुरु की संगत हर जन्म मचा के रख दी। इधर अकाल पुरख जी चिंता विच सन। सिखो अकाल पुरख जी गरीबां दियां दुखियां दियां अरदासां सुन के किसे नूं संसार दा रहबर बना के भेजना चाहते सन। सिंघो माफ करना दुनिया दे विच बुरा पापी को प्यारा करे पापे को सारा। सिंघो अकाल पुरख जी चिंता च सन। अकाल पुरख जी ने सोचा कि संसार दे विच कौम ते गरीब दा राखा किहनूं बना के भेजां। जदों अंतर ध्यान हो के अकाल पुरख जी ने वेख्या सिखो असीं हेमकुंड दी चोटी दे उत्ते इसे हेमकुंड पर्वत दीयां चोटियां ते बैठे अकाल पुरख जी दे ध्यान दे विच आए। गुरु साहब कह रहे सिखो मेरे को अकाल पुरख जी चल के कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा तीर अच्छे लाडो हर फिर ओ कैसे कबीर कबीर। सिखो साडे आउण दा कारण मेरे पास मेरे पिता परमेश्वर जी चल के आए। जदों हेमकुंड पर्वत ते पुजे मेरे पिता परमेश्वर जी ने जिहदे ए वचन सन दुष्ट जम दमन निहार 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 तीन वारी गया पर सिंघो साडी ना खुदण वाली अटुट समाधि तीन वारी कहण ते भी ना खुली। मेरे अंतरजामी पिता वैरू परमेश्वर ने मेरी आत्मा नूं हलूणा दिता। मेरे नेत्र खुले मैं की वेख्या जिहदा ध्यान करके बैठा। मेरे परिपूर्ण पिता परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं। मैं एकदम अंतरजामी पिता परमेश्वर के चरणों से ढह पिया।
ऐसे गंगा कीर पाछे लाकर हरफ गए ओ कैसे कबीर। एक समा हुंदा जदों नाम जपण वाला नाम जपदा खालसा जी कादे नहीं परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते एक समा आउंदा परमेश्वर नूं नाम जपण वाले पास चल के आउणा पैंदा। भगवान चल के आया सी भगत नामदेव जी के पास भगवान चल के आया सी भगत धन्ना जी के पास इधर ते वैगुरू अंतरजामी माफ करना सतगुरु कलगीधर पातशाह के पास भला क्यों ना चल के आउंदे जिथे मसला कौम ते गरीब की रक्षा करती हजूर लगे कर जदों साडे नेत्र खुले असीं की वेख्या मेरा पिता परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है असीं अपने पिता परमेश्वर के चरणों से ढह पै दोवें हाथ जोड़ के बेनती की पिता जी अज आप जी का आउणा इत्थे कीमत होया 3 वारी बचन कीते अकाल पुरख जी ने दुष्ट दमन जी इह समां को बहुतियां गल्लां करन दा नहीं निहाल निहाल कह के पातशाह जी कहंदे उथों मैं ते मेरा पिता परमेश्वर असीं सचखंड दे विच आए खालसा जी पंथ एवें नहीं साजिया गया जरा ध्यान देना पवेगा। हजूर लगे कर जदों असीं सचखंड पुजे सचखंड पातशाह कहंदे ने सचखंड दे विच पहुंच के अकाल पुरख जी अपने आसन ते विराजमान हो गए। बादशाह कहन लगे सिखो असीं की देखिया उत्थे 20,000 अवतार हजरत मुहम्मद रामचंद्र ईसा वर्गे 20,000 अवतार साध संगिनती दे विच गल दे विच पट्टू पा के ना दोवें हथ जोड़ के नीनियां पा के खड़ोते हुए सी। असीं उन्हां अवतारां नूं पुछिया बादशाह ने कहा कि असीं भी उन्हां अवतारां दे विच जाके खड़े हो गए उन्हां अवतारां नूं नीनियां पा के खड़ोतियां नूं पुछिया भाई तुसीं नीनियां पा के क्यों खड़ोते हो। उन्हां अवतारां ने आखिया दुष्ट दमन जी तुहानूं नहीं पता कल करती राजे कताई कर सुलिया सच चंद्रमा चढ़िया नहीं पता दुष्ट दमन जी परमेश्वर की ककाई दे विच हाहाकार मची हुई है। माफ करना परमेश्वर जी अकाल पुरख जी एनी दिनी बड़े चिंता विच ने। अकाल पुरख जी किसी नूं संसार का रहबर पैगंबर कौम ते गरीब का राखा बना के भेजना चाहते ने। असीं तां नीनियां पा के इस करके खड़ोते हैं अंदाजा लाना पवेगा। गुरु साहब की कहानी अपनी जवानी अपनी बाणी विच बयान कर रहे गुरु साहब इन्हां अवतारां ने आखिया दुष्ट दमन जी असीं तां नीनियां पा के इस करके खड़ोते हैं किते कौम ते गरीब की रक्षा वास्ते अकाल पुरख जी सानू ना भेज देण असीं तां नीनियां पा के इस करके खड़ोते हैं। कलयुग दे बोल वादे दे अगे जालमां दे जुल्म दे अगे साडी कोई पेश नहीं जानी असीं ते इस करके नीनियां पा के खड़ोते हैं। हजूर कहते हैं उन्हां अवतारां दे विच असीं भी दोवें हाथ जोड़ के तू खलो गए ना ते अकाल पुरख जी अपने राज सिंहासन ते राज तख्त ते विराजमान हो के मैनू लगे कि दुष्ट दमन जी मैं तेनू कौम ते गरीब दा राखा बना के मात लोक दे विच भेजना चाहता। बादशाह लगे कि सिखो असीं अपने पिता परमेश्वर दे अगे दोवें हाथ जोड़ के बेनती की पिता जी मेरा मात लोक विच जाण नूं दिल नहीं करता चित नहीं करता कितना कहो हमरा मन को चुकी रही सब चरण आख्या सिखो साडा मातलोक विच आउण नूं चित नहीं सी कीता क्योंकि असीं मातलोक दी हालत तो जानू सा सिखो
ना कीता चित मेरा आमन नूं, ना कीता चित मेरा आमन नूं, ना कीता देखो मेरी सुरत मेरे मालक के चरणों ਨਾਲ जुड़ी रही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ मेरा संसार से जान ਨੂੰ दिल नहीं करता, मेरे पिता परमेश्वर ने आख्या मोह अपना सुध तोहे नवाजा। आ दुष्ट दमन दुनिया से बड़े बड़े पैगंबर भेजे ने, अवतार भेजे ने, अज तक किसी को अपना पुत्र बना के नहीं भेजा। आ दुष्ट दमन मैं तेनू अपना पुत्र बना के कौम के गरीब दा दी रक्षा करने वास्ते मात लोक ते भेज रहे हैं। गुरु साहब लगे कन सिखो पातशाह ने आख्या मोहे अपना सुध तोहे नवाजा, पंथ प्रचलित करवे को साजा। मैनू कादे वास्ते भेजा, मैनू संसार से कादे वास्ते आना पिया। सब करदे नूं बुझालिया मैनू हरी ने, हथ दे जामने सब करदे नूं बुझालिया मैनू हरी ने, हथ दे जामने
बुलाया मैनू हरी ने अंत से पिया मैनू बुलाया मैनू याद ना जुड़े हुए सन सिखो साडी तो कोई इच्छा नहीं थी सानू तो तप करदियां मेरे पिता अकाल पुरख ने बुला लिया ये गल कही दुष्ट दमन मात लोक विच जाओ दुनिया के जोगी भेजे ने जोगियां ने जोग मत नाथा ने नाथ मत सिद्धा ने सिद्ध मत बड़े बड़े अवतार भेजे ने पैगंबर भेजे ने सारे ने अपने धर्म च लाने ने अपना नाम दुनिया दे विच प्रगट कीता किसी ने मेरा नाम याद नहीं कीता जाओ दुष्ट दमन मात लोक विच जाओ माफ करना जाओ ऐसा पंथ चलाओ जेड़ा मेरे नाम तो बिना किसी होर नूं ना मन्ने जेड़ा एक मेरी पूजा करे सतगुरु पातशाह लगे कहन सिख साडा चित नहीं सी करदा आउण नूं एक पासे मेरे पिता परमेश्वर दे वचन सन माफ करना कि मात लोक विच जाओ मैं अपने पिता परमेश्वर का हुक्म भी ते नहीं सी मोड़ सकता मेरे पिता परमेश्वर ने जदों ये गल कही जाओ मात लोक दे विच ऐसा पंथ चलाओ जो मेरे तो बिना किसी होर नूं ना मन्ने असीं अपने पिता परमेश्वर दे चरणां च दोवें हाथ जोड़ के बेनती कीती ढंड पयो जोर कर पिता जी पंथ मेरा चलाया नहीं चलना पंथ वैसा ही चलेगा जैसा पंथ आप चाहोगे जैसे पंथ की आप सिरजना वेखनी चाहोगे सिरजा पंथ वेखना चाहोगे पंथ वैसा ही चलेगा पर मेरा पंथ चलाया नहीं चलना गरीब नवाज पंथ वैसा ही चलेगा जैसा आप चाहते हो पर इस पंथ को चलाने वास्ते पंथ चला तब जगत में करोगे सहायता सच्चे पातशाह पंथ का होगे सहाय सच्चे पातशाह
संसार में चलेगा पर मेरा दिलाया नहीं चलना। अंत चला तब जगत में जब तुम हो तो सहाय। जब अति बेनती की थी मेरे पिता परमेश्वर ने आख्या जाओ दुष्ट दमन जिधर ते तुम्हारी नजर ओदे ते मेरी नजर मेरे दोवें हाथ सदा तेरे सिर ते रहणगे तेरे सीर ते रहणगे। नहीं तो तेरे पिता परमेश्वर ने आख्या दुष्ट दमन चक्को तलवार चक्को तेग जाओ जाकर दुश्मन दुष्टा नु सोतो माफ करना। जाओ जाके महात्मा के दुष्टा नु सोतो ते संता दी करो रखिया। अपनी दोवें हाथ जोड़ के बेनती की थी पिताजी जिथे तेग दी कृपा की है भुखिया तो खंडे खड़कने नहीं भुखिया तो तेगा चलनिया नहीं। जिससे तेग की कृपा की कृपा करो उससे तेग की बख्शिश करो। देखते हैं कि जग महल को चलना जिससे तेग की बख्शिश की है उससे तेग की भी बख्शिश करो। खालसा जी हजूर ने आख्या सिंह बेअंत भर लैके तुरनु समय की बार मंगे सच्चे पातशाह गौ दी ते गरीब दी रखिया करन वास्ते जालमा दे जुर्म दा टाकरा करना पवेगा। पातशाह कृपा करो। मेरे पिता परमेश्वर ने आख्या गुरु की मांग रहे है सिंह अज साडा जीवन किधर जा रहा है पंथ एवें नहीं साजिया गया। आज्ञा पातशाह बादशाह कारण सिंह अति अपने पिता परमेश्वर के चरणों में बेनती की थी बादशाह गौ से गरीब की रखिया करने वास्ते भावे मेरा सारा सरपंच मारिया जावे ऐसी कृपा करो मेरे नेत्रों में हंजू नहीं आने चाहिए। दूसरा बात जी एवं जी बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गिया ने मंजे मांग करना गुरु की तकड़ जेड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मंजे ते जाके साधु संत बैठदा सी जादू दा मंजा सी बंदा सिंह बहादुर दा ओने बड़े बड़े पीर वस च कीते होए सन। ओदे पीर चक के ना हर मंजे ते बैठण वाले साधु संत जोगी जां सन्यासी नु मंजा चक के उल्टा कर देंदे पर मंजे ते बैठण वाला भुंजड़ी पैंदा सी मंजा सिर ते घुमी जांदा सी। दूजा वर्ष माफ करना अभी किसी के जंतर मंत्र ते तंत्र दे अधीन ना होइए। तीजा वर्ष की मंगिया कि जदों कदे मेरी जिंदगी का अंतिम समा आ जाए गरीब नूं आज ऐसी कृपा करो अपने ही मन को की बार मंगे गरीब आज कृपा करो जब कदम मेरी जिंदगी का अंतिम समा आ जाए जब
आपकी औध निधान बने, आप ही रण में तब जूझ मरो। जब किते साडी जिंदगी का अंतिम समा आ जाए, अभी अपने पिता परमेश्वर पासों वर मंगिया, अभी मैदाने यज्ञ दे विच जूझ के मर गए। खालसा जी सतगुर पातशाह की वर मंग रहे ने सिखो, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਤਾਨੇ ਯੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਗੁਰੇ ਤੇ ਮਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ वक्त मेरा आवे, जग विच डूब के मरा, आखरी वक्त मेरा आवे, डूब के मरा, आखरी वक्त मेरा आवे, डूब के मरा। साढ़े आउन का प्रयोजन का जगत में आए हमरे, का जगत में आए, का जगत में आए हमरे, का जगत में आए, का जगत में
जगत में आए कादे लई धर्म हेत, धर्म की रखिया करन वास्ते। ते आपां गुरु साहब कहते ने धर्म हेत, धर्म की रखिया करन वास्ते साडा अवतार होया। ते अज आपां झाती मारीए भी आपां धर्म तो किन्नी दूर होंदे जा रहे हैं। धर्म हेत गुरदेव बिठाए, यही काज धरा हम जन्मग, जान लियो साधु सब मनमुख सिखो। अपने मन दे विच इह गल पक्की धार लो कि साडा दुनिया दे विच एडी वड्डी खेड़ खेड़ के आपां ते चार पैसे इकट्ठे हो गए कोठी पा के सारी जिंदगी उत्थे खत्म कर दे। एडी वड्डी खेड़ मैं परमपुर को दासा देखने आयो। बल्ले 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 तमाशा तमाशा किड्डी वड्डी खेड़। कदी बापू दे जीवन नाल अपना जीवन कंपेयर करिए, तुलना करिए, गल इत्थे खत्म हो जाती। जब कहता भी खालसो मेरा रूप खास, खालसो हूं मैं। देखिए प्यो दे स्वरूप ना स्वरूप मिलता साडा, बापू दे चेहरे ना चेहरा मिलता। एडी वड्डी खेड़ खेड़ के माफ करना। जदों आनंदपुर साहब का किला छड्डना सी ना, पंजां प्यारे ने मुखी भाई साहब भाई दया सिंह की समाधि अवस्था भाई साहब भाई दया सिंह ने कलगीधर पातशाह का आने वाला समा तकिया। की वेखिया? सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी गुरु की टंगत आनंदपुर साहब का किला छड़ दे तके। की वेखिया? समाधि अवस्था सरसा दरिया के कंढे ते सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह के परिवार का विछोड़ा पैंदे तकिया। की वेखिया? चढ़दी जवानी अजीत के जुझार वर्गे पुत्रां नूं, साहब संगत जी गुरु साहब के साहबजादियां नूं गड़ी चमकौर के अंदर मौत के सिरे बन के मैदानी जंग दे जूझते तकिया। किहो जी खेड़ खेड़ी गुरु साहब ने। की वेखिया? भाई साहब भाई दया सिंह होरां ने 7 ते 9 साल के मासूम बाबा फतेह सिंह ते बाबा योरावर सिंह जी सरहद की खोली दीवार के अंदर चढ़ींदे तकिया। जदों कलगीधर पातशाह जी माछीवाड़े के जंगलों के कंडियां की सेजा ते बल्ले 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 साध संगत जी टिंड का सराहना करके लेटे तकिया ना, चरणों के छाले सी, खून दीयां धारां बह रही सन, जामा लीरो लीर सी, सर्दी की रुत सी। भाई साहब भाई दया सिंह दीयां ताहां निकल गई, समाधि खुल गई। वो इहो जिहा गुरु और मिलूगा हर गुरु और जिहड़ा अपने साडे वास्ते अपना पुत्त वार दे, अपना प्यो वार दे, वो इन्ने सुख छड्डदे। इहो जिहा गुरु अज दा सिख होए एक शराब नहीं छड्ड सकदा, अज दा सिख एक अमृत नहीं छक सकता, गुरु वाला नहीं बन सकता। इहो जिहा गुरु कहते भाई दया सिंह की समाधि खुल गई। जब अंतिम समा आया ना, कहते वह सचखंड उंज भी जा सकते, कल के कीर्तन च विचार करांगे। सचखंड उंज भी जा सकते सी, चमकौर जूझना चाहते सी, चमकौर की गड़ी पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ अरदास करन ते छड्डी सी। खालसा जी गुल खां ना दे माफ करना पठान के पासों ओनू ललकार के वंगार के ओदे कोलों अपने सत पवित्र सीस ते छुरे का वार कटार का वार करवाया थी। वो कटार का वार क्यों करवाया थी? और सिर्फ इस करके करवाया थी, वो जो अकाल पुरख ने वादा करके आए थी ना, उस वादे पूरा करने वास्ते कि जो अंतिम समा आवे तो साध संगत जी फट खा के मर के साध संगत भावे गुरु मरदा नहीं, फट खा के शरीर छड्ड गए। वो अकाल पुरख दा वादा पूरा करने वास्ते ये कल दे कीर्तन च विचार करांगे। रहो विचार कर बहुत लंबी। भाई साहब भाई दया सिंह की समाधि खुल गई, ताहां निकल गई। ओहो एक दिन आनंदपुरी साध संग बस्ती तुसदी आनंदपुरी उजड़ जाएगी। एक दिन आनंदपुर छड्डना पऊगा, एक दिन पातशाह के परिवार का विछोड़ा पै जाऊगा, एक दिन हजूर के साहबजादे शहीदियां पा जाएंगे, एक दिन आनंदपुर साहब वर्गे ओ बल्ले 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 आनंदपुर साहब वर्गे गुरु की संगत सिंहासन नूं छड्ड के गुरु साहब माछीवाड़े के जंगलों च कढ़िया की सेजा ते खालसा जी माफ करना, टिंड का सराहना करके लेटना पवेगा। यकीन नहीं आया, रात 1 बजे का समा सी। गुरु का सिख भाई दया सिंह उठ के खालसा जी चिंता वाले बंदे नूं ना नींद आया करती ते ना ओदा मन ही भजन टिकिया कर। समाधि दे विचों गुरु का सिख उठ के कलगीधर पातशाह के चरणों च गया, जिथे हजूर की समाधि लगी चौकड़ा मार के बैठे ने। माफ करना
माफ करना गुरु की तक भाई दयाल सिंह होरां ने जाके गुरु साहब के चरणों ते नमस्कार कीती ते जाके गुरु साहब के चरण दबाने कीते। हजूर दे नेत्र खुले, नजर भाई दयाल सिंह ते पई। आख्यो दयाल सिंह आ समा तां आत्म चिंतन दा, ये समा तां निरंकार नाल जुड़न दा। दयाल सिंह किधर आए? भाई साहब भाई दयाल सिंह होरी आख्या पातशाह कृपा करके दसो जो मैं समाधि च वेख्या वो सत्य है? अंतरजामी पातशाह लगे कहते बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तेन कौन कहता झूठ है? भाई दयाल सिंह सोचता भी शायद गुरु साहब मेरी गल समझे। आख्या पातशाह कृपा करके दसो जो मैं समाधि अवस्था च देखिया, एक दिन अनंदपुर साहब चढ़ना पऊगा, एक दिन परिवार का विछोड़ा पै जाऊगा, एक दिन साहबजादे हाथ के शहीदियां प्राप्त कर देंगे कि एक दिन माछीवाड़े के जंगलों च कंडिया की सेजा ते हजूर नूं टिंड का सराहना करके सच्चे पातशाह लिटना पऊगा कि सत्य है। और गुरु जी लगे कहने दया सिंह तेनू पहली बारी यकीन नहीं आया, तेनू सच कर 100 गज रस्सा सिरे ते गांडा बिल्कुल सत्य है। भाई दयाल सिंह जी लगे कर पातशाह किरपा करो आप समर्थ हो, किरपा करो पहाड़ी नूं पलट दिओ, रजा नूं पलट दिओ, माफ करना रजा नूं पलट दिओ, पहाड़े नूं बदल दिओ। पातशाह इन्ना कुछ मैं अपनी अखां दे नाल नहीं देख सकता। हजूर लगे करो दया सिंह तू तो ब्रह्म ज्ञानी हो, होर कोई बंदा ये गल करे वो पहाड़े नूं बदल दे, वो रजा नूं पलट दिओ। दया सिंह जे पहाड़े नूं पलटना हुंदा मेरे पड़दादे गुरु अर्जन देव महाराज तत्तियां तवियां ते कोई बहना पैंदा। माफ करना दया सिंह वो जे पहाड़े नूं बदलना हुंदा कि गुरु अर्जन देव महाराज शक्ति नहीं सी कि पहाड़ा बदल दिंदे, कि उन्हां च समर्था नहीं सी कि राजा पलट दिंदे। वो दया सिंह जे पहाड़े नूं बदलना हुंदा माफ करना गुरु की संगत मेरे पड़दादे गुरु अर्जन देव नूं तत्तियां तवियां ते कोई बहना पैंदा। वो दया सिंह जे पहाड़े नूं बदलना हुंदा मेरे दादे गुरु हरगोबिंद साहब नूं माफ करना जंग को लड़ने पैंदे। वो दया सिंह जे पहाड़े नूं बदलना हुंदा दया सिंह मेरे पिता गुरु तेग बहादुर नूं हस हस के दिल्ली च सीस कुचना पैंदा। वो दया सिंह जा पहाड़ा अट्टा ला पहाड़ा वरत के रहेगा, जा दिन चढ़ेगा तेरे नाल गल करांगे। मैं हूं परम पुरख को इहो जिहा गुरु होया साडा, इहो जिहा गुरु आ जिहड़े कंट्रियां च बैठे हो कीसा सूडी लग्या जी लाया भी आपे को है, लाया भी आपे शहीद बनी जाते हैं। और इहो जिहा गुरु वो हस के जिस गुरु ने परिवार मारिया हो और बल्ले बल्ले ये गल कहती हो मेरी दुनिया मेरे सिख ना वरती। तुसीं भी कह दो साडा घर बार गुरु गोबिंद सिंह तेरी कृपा करके वरता, कह दो कह दे वाहिगुरू। एक बारी तो कह दिओ और 10वें पातशाह सी तेरे पुत्त अंदरों कहो अंदरों जे कहता जी तुसीं गुरुद्वारे की देहली तू ना देहली तू निकल तू पहला तुहाडा अमृत छकण दा मन ना बन जाए। एक बारी ना नेत्र बंद करके गुरु गोबिंद सिंह दे चरणों का ध्यान करके कह दो तेरे पुत्त। एक बारी कह दो, एक बारी कह दो, एक बारी कह दो माफ करना गुरु की संगत महाराज कहना मैं पंथ नूं साजण वास्ते आया हूं। और जिहड़े गुरु तुहानूं साजण वास्ते आए आपां हुण झाती मार के अपने वास्ते तो आए नहीं। हुण भाई साहब भाई दयाल सिंह खालसा जी गुरु साहब ने आख्या जाओ दयाल सिंह जी दिन चढ़ेगा गल करांगे। कुदरती गल है जब आके भजन च बैठते ने ना मन भजन च जुड़ता है ते ना भाई साहब का मन नूं नींद ही आउंदी, चिंता वाले बंदे नींद भी नहीं आउंदी। रही रात का समा गुजर गया, दिन चढ़िया पातशाह का दरबार लगा। भाई दयाल सिंह गुरु साहब के चरणों च पुजे नमस्कार करके फिर बेनती की रात वाली गल रात वाली अमृत वेले वाली गल फिर शुरू की। पातशाह कृपा करो पहाड़े नूं बदल दे, राजा नूं पलट दे। पातशाह लगे कर दया सिंह की बच्चे वाली गल्लां करदा। गुरु साहब लगे कर दया सिंह इंज कर एक मिट्टी की ढेरी बना। जब मिट्टी की ढेरी बनाई पातशाह कहते दया सिंह को खुशी हुई। भाई साहब लगे कहते मार मिट्टी है, मिट्टी की ढेरी बना के कोई खुशी होनी। आख्या एक होर बना दे, एक और बनाई कहते होर कोई खुशी हुई। आख्या पातशाह होर की खुशी होनी, मिट्टी है मिट्टी की ढेरियां बना के कोई खुशी होनी। आख्या एक होर बना दे, जब एक होर बनाई कहते होर। आख्या महाराज तुम बड़े भोले बचन कर रहे हो, मिट्टी की ढेरियां बना के कोई खुशी होनी। गुरु साहब कहते ढा दे। जब ढा जो ढेरियां ढातियां महाराज कहते हुण कोई दुख होया। भाई दया सिंह ने आख्या पातशाह बड़े भोले बचन कर रहे हो, मिट्टी दी ढेरियां ने बनातियां खुशी नहीं, ढातियां दुख नहीं। आख्या दया सिंह तेरे सवाल का जवाब है आनंदपुरी बसदी रहिंदी कोई खुशी नहीं, आनंदपुरी गुजर जाती। दया सिंह कोई दुख नहीं, मैं हूं परम पुरख को दासा देखने आयो जगत तमाशा। दया सिंह रोज तू
बाणी पढ़ता है, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार। आप सदी बात सुनिए, आखे बाचा जी सुनिए, भजन सुनी तो फिर सवाल क्यों करता है, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार दया सिया, किस नल कीचा दोस्ती सब जग चलन हार दया त्या, इत्ते सब जग चलन हारा नक्की दे नाल लाम दोस्ती जवाब है एडी बड़ी खेड़ खेड़ के ये वचन कर देना मैं ऊपर ऊपर को दासा देखने आयो ते समा आज्ञा नहीं दिंदा सारे अमृत छको एक धारणा पढ़ लो जो पंजाब दे विच अद हर संत पढ़ रहा थां थां ते अकाल तख्त तू आवाज पई आवे अमृत छक सजो खालसा अकाल तख्त तू आवाज पई आवे अमृत छक सजो खालसा
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਖੀ है 300 साला खालसे का प्रकाश दिवस 400 साला शायद साढ़े चुको भागा वाला देखे अमृत छक के गुरु वाले बनो आओ गुरु की संगते थां थां ते पंजाब दे विच उत्थे तां भावें आपां 13 अप्रैल नूं विसाखी मनाउणी है इंडिया दे विच तां थां थां ते विसाखी नूं मुख रख के संत समागम कीते जा रहे हैं। असीं भी कोशिश कर रहे हैं ये 1 जनवरी तो लैके जनवरी 1 तो लैके 1999 की जनवरी तो लैके असीं कोशिश कर रहे हैं कि 2000 की विसाखी तक 5 लाख संगतां नूं अमृत छका के गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणों दे नाल जोड़न। हुण भावें इत्थे बैठे पिछे सिंह पिंडां दे विच घुम रहे हैं। अज भी गल हो रही सी उन्होंने कहा बाबा जी साडे कोल मोगे दे इलाके की 5000 बंदियां दी लिस्ट है तुहाडी वेट कर रहे 5000 बंदे की लिस्ट चंडीगढ़ के इलाके च तैयार की है। घर घर जाके गड्डियां तोरियां जेडे ये कह रहे हैं बेनतियां कर करके सिंह साहब जी की तुसी सिख हो उन्होंने ऐ कहा भी उन्होंने दे मुंह तो कहाओ की तुसी सिख हो। अगला कह गया हाँ जी सिख हाँ। भाई साहब की सिख केस कतल कराउंदे हुंदे ने? नहीं जी। भाई साहब जी तुसी क्यों कतल कराए तुहाडी की मजबूरी उन्होंने पूछो। जे कोई शराब पींदा उन्होंने पूछो तुहाडी की मजबूरी। जे कोई मांस खाता पूछो की मजबूरी। जे कोई सस अमृत नहीं छकदा उन्होंने पूछो की मजबूरी है। चली चल चलाई चल गोबिंद दे गुण गाई चल भुली भटकी दुनिया नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लाई चल। आओ गुरु प्यारे ओ भागा वाले अमृत छक के ना एक बारी 10वें पातशाह नूं कह दो सच्चे पातशाह जा तेरा दंदा। एक बारी कह दो गुरु किते बाह फड़ूगा फड़ूंगा गुरु किते बाह ते जे आपा ही गुरु दी बाह ना फड़ी तो गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में चूक अंधे एक न लागी जो बांस बजाइए फूक सारे अमृत छको गुरु वाले बनो गुरु चरण नाल जुड़ो। इस करके दुनिया ते आए हैं कल ना काल दा इथों चले आ जाए इत्थे नहीं रहना। अब बचपन निकल गया जवानी तो ऐ निकल जाती है जिवें पंछी उड़दा ना ओदी परछाई भी नाल तो उड़ जाती नाल जिवें परछाई जाती ना परछाई पंछी दी परछाई दी पंछी आकाश में पंछी उड़दा महापुर कहंदे होंदे सी कहना जवानी आ जाती जब पंछी किथे गई बुजुर्गों जवानी पता लगा जाती का पता लगा उनकी जवानी हर कोई कहता हर कोई कहता पुत जवान हो गया पर जाती किसी ना डिठी है जाती नहीं नजर आती खालसा जी खैर रहो विचार सब आज्ञा नहीं दिता नंद साहब का पाठ होएगा ते कल फिर आप जी दर्शन करांगे। रामकली महला तीजा नंद को काट पताद आनंद पिया मेरी
ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ